Hello friends. So in this today's Techno Funda analysis video, we will be discussing about a trading stock that is looking good for short term and हम आज कोई investment या फिर positional trading के लिए कोई stock discuss नहीं करेंगे because we have to learn also कि मतलब जो short term के लिए positions लेते हैं तो उसमें fundamental analysis कैसे करना चाहिए and उसमें fundamental analysis का क्या role होता है बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस ले लेते हैं बट जनरली बहुत सारे थोड़े बहुत ट्रेडर्स की पोजीशन कोई ऐसे स्टॉक में रहती है जो कि कंपनी अच्छी नहीं है एंड एट द एंड ऑफ द डे तो those traders get stuck in that particular position and वो short term की position long term बन जाती है and then so this all things happen so अभी हम basically वो stock का discuss करके we will understand कि how to do analysis of this particular stock in fundamental analysis and also we will learn कि fundamentals का कितना importance हो सकता है इस particular stock में so stay tuned and watch this video till end so हम we will start with the video right now. So the stock like stock name is Astra Microwave and जैसे कि आप if you are following me on Twitter तो यहाँ पे मैंने 1:38 PM को अपडेट किया था कि I am buying this particular stock for short term and यहाँ पे मैंने टारगेट लेवल सब बता दिए. So generally market hours में update देना is more feasible because at that time जो trader friends है मेरे they can look at the charts इसका analysis करके they can take the position on the same day itself instead of waiting till the day end or next day. जैसे कि अभी इसका current price is 186 जब मैंने update किया था उसका तभी इसका प्राइस 186 था and अभी the price is 192. Basically it is up by around 3% in intraday itself. So थोड़ा benefit होता है and if you want like you can follow me on Twitter as well और टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था इसके बारे में so that you will be getting notified live during the market hours and so this is about the update thing. Now let's start with the technical analysis first. So यहाँ पे जैसे कि कोई इन्वेस्टर होता है तो दे जनरली डू टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच ऑफ एनालिसिस. सो हम यहाँ पे भी टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे इन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एंड यहाँ पे मैंने अभी करंटली मंथली चार्ट ओपन किया है एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू डेली चार्ट एज वेल. ठीक है तो अभी मंथली चार्ट में इफ यू सी कि यहाँ पे जो सितंबर 2005 में इसका ऑल टाइम हाई लेवल था विच इज 199.35 करंट. सो 199.35 वाज द ऑल टाइम हाई लेवल इन 2005 एंड इसके बाद ये स्टॉक ने लेवल कभी टच ही नहीं किया एंड इसके ऊपर गया ही नहीं कभी. सो अभी द करंट प्राइस इज 192 एंड ऑलमोस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 16 years ये जो अस्ट्रा माइक्रोवेव हैड रीच दैट पर्टिकुलर लेवल एंड सो यू कैन सी कि पॉसिबली यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है. यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके थोड़ा ब्रेकआउट देके इट कैन मूव अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई लेवल रेजिस्टेंस. एट दैट टाइम ये स्टॉक कैन बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल बट राइट नाउ हम अभी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं वी कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग right now. So अभी 199.35 is crucial level for our trading analysis as well. So just take it in the like note कर लो इस level को and we will discuss it in the subsequent part of this video as well. So this is about the all-time high levels for Astra Microwave and now we will start with the daily chart. So after zooming in, यहाँ पे this yellow line is the resistance for Astra Microwave and आज के दिन इसने इसके ऊपर close भी कर लिया basically. So we have seen a good breakout in this particular stock about the all-time high about this yellow line as well. Both the yellow line, not the one single one. Both the yellow lines के ऊपर इसने close कर दिया and this was particularly a resistance for this particular stock. जैसे कि यहाँ पे इसको resistance था. Again यहाँ पे इसको resistance था वापस. यहाँ पे वापस इसको resistance मिला and यहाँ पे उसने resist करके breakout दे दिया basically आज के दिन. And after हर ट्रेडर को मालूम है कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेडर शुड ट्रैक दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड उसका पोजीशन बनाना चाहिए एंड सेम थिंग मैंने इसके लिए अपडेट किया था इसके बारे में कि वन कैन टेक द पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक टुडे इटसेल्फ. सो अभी इसको थोड़ा जूम कम करके अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक इज इन अप ट्रेंड मतलब मार्च 2020 का लो बना के स्टॉक सीधा अप ट्रेंड में एंड मोस्टली जो अप ट्रेंड में कैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है इट फॉर्म्स अ राउंडेड
बॉटम पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न। दिस इज द कॉमन पैटर्न दैट वी सी इन अप ट्रेंड। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक राउंडेड बॉटम बनाया था, यहाँ पे अगेन राउंडेड बॉटम है, यहाँ पे अगेन बड़ा सा राउंडेड बॉटम है, फिर यहाँ पे अगेन राउंडेड बॉटम है। सो अप ट्रेंड की जर्नी ऐसी होती है कि इट फॉर्म्स थोड़ा ऊपर मूव करके फॉर्म्स राउंडेड बॉटम पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न, उसके ऊपर ब्रेकआउट देके स्टार्ट इट्स अप ट्रेंड अगेन। सो अभी भी इसने सॉर्ट ऑफ राउंडेड बॉटम बनाया है यहाँ पे एंड इसने ब्रेकआउट दे दिया है। दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर अप ट्रेंड, जो कि हम देख रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर से। सो बेस्ड ऑन दिस ब्रेकआउट, अभी के इसमें करंट रेजिस्टेंस लेवल विल बी 199.35, जो हमने डिस्कस किया था फ्रॉम आवर मंथली चार्ट। सो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल एज ऑफ नाउ एंड इसके ऊपर देख के तो वी कैन सी गुड लेवल, अपर लेवल एज वेल। बट अभी हम अगर ब्रेकआउट के ऊपर देखें, सो इसका टारगेट जो आएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट, सो वी विल कैलकुलेट दिस राइट नाउ। सो ये ब्रेकआउट के पहले ये वाला हाई इसने बनाया था एंड इसके पहले ये लो था बेसिकली। सो ये रेंज कैलकुलेट करके आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर रेंज अबाउट दिस रेजिस्टेंस लाइन, अपर रेजिस्टेंस लाइन, एंड इसके बाद आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन, एक लाइन ड्रॉ करके आई विल फाइंड द टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉप। सो जो टारगेट आ रहा है मुझे इस ब्रेकआउट का, इट इज 229 और 228 के आसपास है after this breakout. So this is a short-term target that one should look for in Astra Microwave particularly. And अगर हम पोजीशन बना रहे ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। नेकेड पोजीशन तो हम ले नहीं सकते। सो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इट विल बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल which is 169. So taking it one point down, which is 168. So basically अभी हमारा करंट प्राइस इज 192. So what trader can do right now is, जिसने पोजीशन ली है वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिया है दे कैन वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, या बेसिकली रिटेस्ट करेगा उसका वेट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन ऐड दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड और एल्स दे कैन बाय टुमारो एज वेल। सो एंड सो द करंट प्राइस इज 192 एंड इसका जो स्टॉप लॉस है वो 168 का है, जो टारगेट है इट इज 229 228। सो अभी हम इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड देखे इसमें, जो कि हर ट्रेडर देखता है इस केस में, so I will just calculate the risk reward part. So जो हमारा रिवॉर्ड है वो 19.3% का है, बेसिकली 37 पॉइंट्स और 19.3% फ्रॉम का करंट प्राइस, एंड जो हमारा रिस्क है वो भी 12% के आसपास है। सो बेसिकली जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो 2:3 का है, विच इज मोर देन 1। मतलब हमारा रिस्क इसमें बहुत कम है एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इसके अंदर। सो वन कैन डेफिनेटली लुक फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस एंड अभी हम इसमें फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे एंड वी विल चेक कि क्या पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं फॉर स्टॉक अगर हम शॉर्ट टर्म की पोजीशंस ले रहे हैं तो। सो कंपनी का जो माइक्रो मार्केट कैप इट इज 1500 करोड़, जो बुक वैल्यू है वो 64 के आसपास है एंड जो प्राइस टू बुक है वो 3x रहेगा। एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, अभी 660 से 671 पे है, एंड जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली जो कंपनी है वो डिविडेंड भी पे करती है ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर टू देयर इन्वेस्टर्स, एंड कंपनी का जो ईपीएस है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है स्लाइटली इस केस में। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो बोरोइंग्स है वो डिक्रीज हो रहे थे यहाँ तक, बट यहाँ पे दे हैव सडनली स्टार्टेड टेकिंग डेट, बट स्टिल डेट इज अंडर कंट्रोल। रिजर्व्स अगर हम देखें तो रिजर्व्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द बोरोइंग्स। सो दिस इज गुड साइन एंड कंपनी का जो फंडामेंटल्स जो बैलेंस शीट है वो अच्छा साइन बता रहा है इसमें, एंड डेट इज वेरी लेस इन दिस केस। अभी हम अगर इन्वेस्टर्स में देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है दे आर reducing their stake for the last 3 years. तो यहाँ पे they have reduced almost 3.4.5% stake, around 4.5 4.6, so थोड़ा सा stake यहाँ पे decrease हुआ है। Even FIs are reducing stake, but यहाँ तक उन्होंने reduce करके they have started increasing their stake again.
और अगर DIs में देखें तो यहाँ पे DIs आर ऑल्सो डिक्रीजिंग या स्टेक एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गई है बेसिकली। एंड मोर और लेस यहाँ पे एनीस इन्वेस्टर रमेश दमानी जी का भी पोजीशन है इसमें। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट स्टिल अगर हम अभी प्रमोटर प्लेजिंग भी देखेंगे तो इसमें प्रमोटर प्लेजिंग 0 है। सो हमने फंडामेंटल्स इतना स्टडी किया, बट आई विल गिव वेरी लेस वेटेज टू फंडामेंटल्स बिकॉज हमारा पोजीशन इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड हमारा स्टॉप लॉस के अंदर रिस्क भी 12% का ही है, उससे ज्यादा नहीं है हमारा। सो फंडामेंटल्स के अंदर वी विल गिव वेरी लेस वेटेज, और जो टेक्निकल्स है उस पर हम ज्यादा वेटेज देंगे इस केस में। एंड वी विल कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड चाहिए तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखो इसके अंदर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन कैन डेफिनेटली मतलब लुक फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एज वेल। एंड फंडामेंटल्स में कंपनी प्रॉफिटेबल है, ईपीएस पॉजिटिव है, रेवेन्यू पे ग्रोथ है, बैलेंस शीट में बोरोइंग्स कम है। देयर इज अ प्रॉब्लम ओनली इन दिस इन्वेस्टर होल्डिंग, जो कि दैट इज नॉट important फॉर अ कंपनी इन शॉर्ट टर्म। So this is all about the today's techno funda analysis video of Extra Microwave. And agar if you want updates like jaldi update, agar if you want, then you can follow on us on Twitter or Telegram. And if you have learned anything from this video, agar aapko is video se kuch bhi seekhne mila ho, then you can like this video and also do subscribe to our channel for more informative videos in future. And also you can share this video with your friends as well. There is and these are the links for Twitter and Telegram, and you can check this out and you can follow us there. There is a disclaimer also with this video. Thank you guys.